इंग्लिश में पढ़ना है मराठी? ओके, सो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है सिंबोलॉजी के अंदर द एम्परर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन कौन से सिंबल्स है स्नेहल? क्राउन, इन्फिनिटी साइन, आर्मर, आंख, क्रॉस, ग्लोब, ऑरेंज स्काई, माउंटेन्स, रिवर। क्या क्या क्राउन सिंबोलॉजी है मीन्स ये और क्या डिनोट करते हैं ये सब? crown means it is like king personality हम्म। and मतलब उसका कुछ तो औहदा है, पोजीशन है जो उसने बहुत स्ट्रगल करके मतलब ये किए, गेन किए। हम्म। देन इन्फिनिटी साइन मीन्स इट इज इन्फिनिटी लूप। हम्म। और देन आर्मर मीन्स प्रोटेक्शन। ओके। देन क्रॉस, क्रॉस साइन, क्रॉस कनेक्ट। Then ओके। orange sky means masculine energy. हम्म। माउंटेन्स मीन्स देर इज ऑब्स्टेकल, मतलब उसने उसके लाइफ में बहुत ऑब्स्टेकल्स पार करके वो यहाँ तक पहुंचा है। रिवर मीन्स फ्लोइंग एनर्जी। ओके, गुड। जॉन, सिंबल्स क्या कहते हैं? एरिस का रह गया। रैम, बताओ। मेन पावरफुल और एंगर इशू बोल सकते हैं। बहुत हम्म। गुस्सा आना। और सेम बहुत सारा स्ट्रगल करके वो इंसान उस इसमें आया है, खुद को उसने उसका क्रिएट किया है, चेंजेस लाए हैं। बहुत सारा पैसा है उसके पास, मटेरियलिस्टिक चीजें, और उसे पावर में रहना पसंद है, हक जताना, अथॉरिटी में रहना। हम्म। बहुत नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, हम्म। और इजीली ट्रस्ट नहीं करता किसी पे। हमेशा प्रोटेक्शन के साथ या प्रिपेयर रहेगा वो। सिंबल्स बस, और बहुत सारा पैशन। और कुछ सिंबल रह गए इसमें? आंख, आंख, क्रिएशन, क्रिएशन। डिवाइन कनेक्शन। गुड। नाउ चित्रांगदा मैम। First of all, it is crown. Crown shows authority, responsibility, and power. Infinity is, everything is in a loop and everything is in control, and the potential of bringing in all the significance of life, and control, abundance, rules, discipline, all those things is within this loop, and it is fully you know into the life of the person Okay. representing the card. Armor is protection, and even while he is sitting on the throne, and he is still wearing the armor, it shows he is his vigilance, and always ready to take action when where it is required to protect himself and his surroundings and people, or whoever in the situation are. So he's very protective and very disciplined, and Mm-hmm. alert all the time, vigilant. Okay. Ankh is the symbolism of life from above, and whatever it is, it comes with the blessing, power. Again, it is there. He's holding it, and whatever power he is, he is supposed to be using it for the good of the people, and around him. Nothing like, as being a protector, controller, disciplined emperor, king, he is. So the is that um cross. Actually, I haven't seen the cross in the card, uh, where it is. Find it out. Where it is, John? Top of the crown. Look at the top of the crown.
Okay, that one. Yeah. Yes. Okay. Mm, globe is globe. His spread of his power and authority throughout, and the control over the situation and holding it under peace and everything. Globe is Mm-hmm. his wide range of his expanded thing, and opportunities, and things that he can attain, and all those things can also be represented by God. Orange sky is of passion. Again, there is um what I feel is, little bit of passion and little bit of, controlling, and all those kind of an energy in that orange sky. Mountains are always, struggles, obstacles, everything. But, these are things that make you more strong and disciplined and aware of, life's pattern of life, actually. River is a flowing thing, and it takes away all the emotional part of it, to make him more practical and more disciplined and already. Everything that flows become pure. It is not stagnated. Whatever emotions are there, it is not stuck. He's not stuck in any kind of an emotion or anything. It is out, and he is much focused on, and his thought process is pure, and his intentions are pure, and nothing is holding him back emotionally, and it is flowing. That's what I think. Thank you. वेरी गुड. सो यहाँ पे सारे एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंबल्स डन हो गए हैं. जो हम डे टू डे देखते हैं सारी चीजें, ठीक है, वही आपको यहाँ पे नजर आएंगी. तो ये जो कार्ड है वो सिंबोलॉजी के अंदर मेजरली हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है. थ्रोन के बारे में किसी ने बात नहीं की. सिंहासन. हाँ, वही तो मैं. ओके. सो वो एक है. वो कहाँ मिलता है, किसे मिलता है. रेस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अथॉरिटी. होता है. अथॉरिटी. अथॉरिटी है. सी पोजीशन के साथ में इनहेरिटेड भी हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज सकता आर है. देयर. ओके. इनहेरिटेड पावर भी हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल सही. विद बियर्ड. बियर्ड के बारे में किसी ने बात नहीं की. और नॉलेज. एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस. यस. सो ये जो सारी चीजें हम सिंबॉलिकली देख रहे हैं वो कब और कैसे इस्तेमाल होती है, जो अब तक हम बात करते हुए आए हैं. जब भी कोई सवाल आपके पास आएगा, द मोस्ट सिंबल आपको जो पॉपअप होगा, दिस इज द की सिंबल ऑफ द क्लाइंट. तो उससे रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें आपके पास वोकैबुलरी है, और विद द इंट्यूशन पावर, आपको जो भी उस समय कॉल हो रहा है, यू हैव टू से दैट फ्रॉम द कार्ड. तो कार्ड को किस तरीके से पढ़ना है. नंबर तो है ही, कलर्स तो है ही, हर एक का अपना अपना अपनी जगह पे मतलब है. यहाँ पे जो रैम्स दिखाई दे रहे हैं वो भी पावर को डिनोट करते हैं. एरीज, मेष राशि, राइट. जो शॉल है, शॉल के बारे में किसी ने बात नहीं की, तो थोड़ा और ध्यान देना है. ठीक है. अब ये जो है ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है. थीम. जैसे कोई एक कंट्री होती है, कंट्री की थीम होती है. अगर कोई स्टेट होता है, स्टेट की थीम होती है. फ्लैग्स होते हैं. तो ये कार्ड्स बने किस वक्त है, उस समय ये फॉलो करने वाली जो चीज है वो सिंबल्स है जो स्प्रेड होंगे. अभी ये जो रैम्स आपको नजर आ रहे हैं, और जो रैम का सिंबल उनके शॉल के ऊपर है, जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, वो क्या है, वो प्रतीक है. जैसे हम आगे धीरे धीरे देखेंगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में भी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स में भी है, हर एक किंग में है. अपने अपने राज्य का फ्लैग होगा ना, राइट. बट ऑल ओवर वर्ल्ड कहेंगे तो कोई फ्लैग आएगा, कोई कंट्री कहेंगे तो फ्लैग आएगा. तो एम्परर का कार्ड क्या बताता है, जैसे कि ग्लोबली, ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है. जब भी एम्परर का कार्ड आएगा, वाइड नजरिए से देखना है, प्रिसाइज नहीं. ये डिटेलिंग में जाता है, छोटी छोटी चीजों को फाइंड करते हुए ही ये यहाँ तक पहुंचा हुआ है.
जो माउंटेन्स है वो ऑब्स्टैकल्स को जरूर बताता है, लेकिन वो अचीवमेंट्स को भी बताते हैं। अब ये जो पीछे माउंटेन्स है उसमें आप ना देखोगे अ लॉट ऑफ स्ट्रगल है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, नो सपोर्ट, नो ग्रोथ, नो ग्रीनरी, ओनली ऑरेंज कलर। जो क्या बताता है, जो ये माउंटेन जितना दिखाई दे रहा है उससे कई सौ गुना नीचे है। द आइसबर्ग थ्योरी, वी नो दैट। ठीक है, सो जितना दिखाई देता है उससे कई गुना ज्यादा वो डेप्थ में होता है। अब शॉल कब इस्तेमाल करते हैं? ठंड लगी तब इस्तेमाल करते हैं। कोई कॉस्ट्यूम है प्रॉपर जो उसकी थीम है तब इस्तेमाल करते हैं। चीजें हाइड करने के लिए करते हैं, राइट? तो द एम्परर के पास अपने 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 युद्ध के वार वो दिखाएगा किसी को? मुझे कितनी चोट लगी, नहीं दिखाएगा। सेम रिवर, रिवर कितनी छोटी है, वाटर बॉडी कितनी छोटी है इसके पीछे, इसका मतलब ये लेस इमोशनल है। इमोशनल पूरी तरीके से नहीं है ऐसी बात नहीं है, कम है। ठीक है, अगर इमोशनल कम है तो ये है क्या? प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक ज्यादा है, विद द कैलकुलेशन नंबर 4 की वजह से, राहु। ठीक है, यहां तक क्लियर है ये से सारे सिंबल्स? डन। अब हम नेक्स्ट सिंबल्स फिर पढ़ते हैं। उसके हाथ में जो है जी अंक, and then on the other hand, जी, वन इज is it the अनदर इज अ ग्लोब। समटाइम मोस्ट प्रोबेबली अगर कार्ड्स के बारे में बात करें तो अलग अलग कार्ड्स में आपको वो अलग अलग दिखेगा। किसी कार्ड्स में वो कॉइन दिखेगा, किसी कार्ड्स में वो लेमन दिखेगा, किसी हाँ, कार्ड्स में वो आपको मून का जो है ना, सन एंड मून का कॉम्बिनेशन जैसे मून कार्ड के अंदर है वो आपको नजर आएगा। ये डिपेंडेंट ऑन द पेंटिंग है, लेकिन ओरिजिनल क्या है उसके हाथ में? अ गोल्डन ग्लोब। ओके, क्लियर? अब ये गोल्डन ग्लोब किस लिए है? जो हमने प्रोफेशनल में हमने ये भी देखा था कि जो आंख होती है उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, फर्टाइल कैसे किया जाता है। सो द एम्परर हैव अ टू पावर्स, फेमिनिन पावर एज वेल, मस्कुलिन पावर एज वेल, टू क्रिएट समथिंग। ओके, जैसे कि हमें ये कहा जाता है ये मत करो, आपको तकलीफ होगी। ठीक है, दिस इज द सेंटेंस। इस सेंटेंस के पीछे क्या छुपा है? एक तो उस इंसान ने खुद वो सिचुएशन जी हुई है और उसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है, इसलिए वो हमें रोक रहा है। ऑदर ये पहले से चलता आया हुआ है प्रथा की तरह कि ये नहीं करना चाहिए। शास्त्र भी कहते हैं ना नहीं करना चाहिए। क्यों कहते हैं? उसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है जो अभी अभी पता चल रहा है सब। तो इट्स एंड एवरीथिंग हैव अ रूल। और ये कौन है? एम्परर, जो क्रिएट करता है रूल्स को, और पूरी लाइफ रूल्स के ऊपर ही चलता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, it's सो मूविंग टू द नेक्स्ट कार्ड।